Hello student, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 50 most important MCQs of chapter Agriculture Geography class 10th. So without wasting time, let's start the video. First question is, how much of India's population is engaged in agriculture activity? इंडिया की कितनी population agriculture activity में engaged है? Option A 2/3, B half, C 1/3, D almost. So right option is 2/3. Question number 2. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characterized of option A types of crop, B technological know-how, C type of season, D government intervention. So right option is B technology know-how. आजकल जो है कल्टीवेशन के मेथड्स चेंज होते जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं. Question number 3. Farming has varied from subsistence to dash type. Option A intensive, B extensive, C commercial, D plantation. So right option is C commercial. Commercial farming subsistence farming से बिल्कुल अलग होती है. Question number 4. Agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough, digging sticks and family community labor. What type of agriculture is this? ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो छोटे खेतों पर की जाती है और जिसमें प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ किए जाते हैं और जिसमें एज अ लेबर फैमिली और कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही पूरा कर लिया जाता है काम, ऐसी एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटेंसिव, बी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, सी एक्सटेंसिव, डी प्लांटेशन. सो राइट ऑप्शन इज बी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. Question number 5. What has been the main dependency of primitive farming? Option A monsoon, B labor, C suitability of other environment, D technical. So right option is monsoon. Primitive farming में mostly irrigation के लिए monsoon पर depend रहते हैं. Question number 6. Which type of agriculture is called slash and burn agriculture? Option A plantation, B intensive, C primitive subsistence, D extensive. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है C प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, यानी प्रिमिटिव सब्सटेंस को ही स्लैश एंड बर्न कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्रीकल्चर का फीचर क्या है? ऑप्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, B. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land. C. Canal were used. D. Use of fertilizers. So right option is B. When the soil fertility decreases, जब एक जगह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो फार्मर्स उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह के एरिया को क्लियर करके वहाँ पर खेती करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. What is slash and burn agriculture called is mainly northeastern state? A. Jhuming, B. Milpa, C. Mysore, D. Ray. So right option is A. Jhuming. Question number 9. Intensive subsistence farming is dash farming. Option A machine based, B crop rotation, C labor intensive, C soil consistent. तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है लेबर इंटेंसिव. क्वेश्चन नंबर 10. Why is there enormous pressure on agriculture land? Option A due to the law of inheritance and division of land, B overpopulation, C small scale farmers are not able to earn livelihood, D farmer of less land holding are not able to afford the right techniques. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए ड्यू टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड. मोस्टली जो लोग होते हैं
हेरिडिटी को के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ टू यूज ऑफ हायर doses of modern inputs, example high yield varieties, seeds, chemical fertilizer, insecticides and pesticides. Option A primitive subsistence, B plantation, C extensive, D commercial. 11 का राइट आंसर है डी कमर्शियल। कमर्शियल फार्मिंग में वो बिजनेस पर्पस के लिए की जाती है, उसमें हाई क्वालिटी सीड्स के, बेस्ट क्वालिटी सीड्स के सीड्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। सो राइट ऑप्शन इज डी। Question number 12. If rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, in which state is it a subsistence for crop? सब्सिस्टेंस होता है जो अपने निर्वाह के लिए किया जाता है। सब्सिस्टेंस का मतलब था स्टूडेंट्स जो निर्वाह के लिए, यानी जो फार्मर सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, उसका पर्पस उसको सेल करना नहीं होता है। तो ऐसी राइस जो हरियाणा और पंजाब में एज अ कमर्शियल क्रॉप है, तो कौन से स्टेट में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी निर्वाह की खेती की जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग? प्लांटेशन फार्मिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ऑप्शन ए मल्टीपल क्रॉप्स, बी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, C. The produce is used of various reasons. D. Crop rotation on the same piece of land. Question number 13 का right answer है B. Using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. Question number 14. Name important plantation crop. Plantation crop का की name बताइए। A. Tea, coffee, rubber, sugarcane, banana. B. Cotton. C. Wheat and rice. D. Nuts. So right option is A. Tea, coffee, rubber, sugarcane, banana. These are the plantation crops. Question number 15. Which state is known for growing tea? कौन से स्टेट को टी के नाम से जाना जाता है, मतलब कि टी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है? ऑप्शन ए असम, बी शिलोंग, सी मेघालय, डी सिक्किम। सो राइट ऑप्शन इज ए Assam. Question number 16. How many cropping season does India have? इंडिया में कितनी क्रॉपिंग सीजन है? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 5, डी 3। राइट ऑप्शन इज डी 3। और कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ एंड जैद। रबी, खरीफ एंड जैद। Question number 17. When are Rabi crop harvested? Option A October, B April, C December, D July. Right option is B April. रबी क्रॉप को हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी उसकी कटाई कब की जाती है? अप्रैल मंथ में। क्वेश्चन नंबर 18. आइडेंटिफाई द रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को पहचानिए। ऑप्शंस ए जवार, बी राइस, सी सोयाबीन, डी पीस। सो राइट ऑप्शन इज डी पीस। क्वेश्चन नंबर 19. विच स्टेट इज नोन ऑफ ग्रोइंग रबी क्रॉप्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी पंजाब। राइट ऑप्शन इज डी पंजाब। Question number 20. Availability of dash during winter months due to the western temperature cyclones help in success of rabi crops. Availability of dash during winter months. Winter months में dash की availability due to the western temperature cyclone help the success of rabi crop. तो रबी क्रॉप के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है? ऑप्शन ए मानसून, बी प्रेसिपिटेशन, सी फ्रॉस्ट, डी विंड्स। सो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 21.
Which state are known for their success in green revolution? Option A Punjab, B Uttar Pradesh, C Uttarakhand, D Gujarat. So right option is A Punjab. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था स्टूडेंट्स? जो 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो उसमें सबसे आगे कौन सी स्टेट रही? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन आर खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट की जाती है, यानी खरीफ क्रॉप की कटाई कब होती है? ऑप्शन ए सितंबर अक्टूबर, बी दिसंबर जनवरी, सी जून जुलाई, डी अप्रैल मई। सो राइट ऑप्शन इज ए सितंबर अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23, विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ फॉर फूड एंड फूडर? ऐसी कौन सी क्रॉप है जो फूड और फूडर दोनों के लिए यूज की जाती है, यानी फूड मीन्स खाने के लिए और फूडर मीन्स चारे के लिए। चारा मीन्स जानवरों का खाना। ऑप्शन ए ज्वार, बी मेज, सी बाजरा, डी वीट। सो राइट ऑप्शन इज बी मेज। क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर? किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, बी सिल्क, सी कॉटन, सी हेम्प। सो राइट ऑप्शन इज 24 का राइट ऑप्शन है ए जूट। जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 25, विच फाइबर क्रॉप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons ऑफ द सिल्कवर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो हमें सिल्कवर्म के कुकून से मिलती है, जो फेड ऑन ग्रीन लीव्स, जो हरे पत्तों पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए जूट, बी सिल्क, सी कॉटन, डी हम। सो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है बी सिल्क। क्वेश्चन नंबर 26, बाय व्हाट नेम झूमिंग इज नोन इन झारखंड? झारखंड में झूमिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? ए बेवार, बी दैया, सी पोड़ू, डी कुरुआ। सो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है डी कुरुआ। झूमिंग इज ऑल्सो नोन द प्रिमिटिव फार्मिंग, जिसे हमने स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, इसे झूमिंग भी कहते हैं, ठीक है। और झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ज़ैद इज अ शॉर्ट सीजन विच कम ड्यूरिंग द मंथ्स? ज़ैद जो एग्रीकल्चर सीजन है विच कम्स ड्यूरिंग द मंथ, वो किस महीने में आता है? ऑप्शन ए विंटर, बी समर, सी रेनी, डी ऑटम। सो राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बी समर। क्वेश्चन नंबर 28, डैश आर नोन एज द कोर्स ग्रेन? कोर्स ग्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वार, बी बाजरा, सी रागी, डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द क्रॉप इन विच इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर? ऑप्शन ए पल्सेस, बी वीट, सी राइस, डी सी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी क्रॉप में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है? ऑप्शन ए इज राइट, पल्सेस, यानी दालों में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द डैश स्टेट? मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी आंध्र प्रदेश। सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है डी आंध्र प्रदेश। ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रेप्स ग्रो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड? जब छोटे खेतों को जोड़कर बड़ा खेत बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, बी कलेक्टिविज्म, सी कोऑपरेटिव फार्मिंग, डी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सो 31 का राइट आंसर है डी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32, आर टाइप्स ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज? ऑप्शन ए बाजरा, बी राजमा, सी ज्वार, डी रागी। सो राइट ऑप्शन इज डी रागी। Ragi is rich in iron, calcium. Question number 33. Which one of the following is the announced
by the government in support of a crop. कौन सा गवर्नमेंट ने क्रॉप के लिए अनाउंस किया है, कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए अनाउंस की है? ऑप्शन ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डी मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, डी इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस. सो राइट ऑप्शन इज बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्वेश्चन नंबर 34. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ. प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक टाइप है, किस टाइप की फार्मिंग के? ऑप्शन ए सब्सटेंस फार्मिंग, बी कमर्शियल फार्मिंग, सी मिक्स्ड फार्मिंग, डी नन ऑफ दीज. सो राइट ऑप्शन इज बी कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. क्वेश्चन नंबर 35. इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्रीज आर. हमारी कंट्री की नॉन फूड क्रॉप्स हैं टी एंड कॉफी, बी मिलेट एंड पल्सेस, सी कॉटन एंड जूट, डी नन ऑफ दोज ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है कॉटन एंड जूट. दीज आर द नॉन फूड क्रॉप्स. कॉटन एंड जूट्स आर द नॉन फूड क्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 36. विच इज द राइट कंडीशन ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज. मेज को ग्रो करने के लिए कौन सी राइट कंडीशन है? मीन्स टेम्परेचर. ऑप्शन ए टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस and old alluvial soil, B temperature below 17 degree and shallow black soil, C temperature of 25 degree and 200 centimeter of rainfall, D none of the above. So right option is A. मेज के लिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री टेम्परेचर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 37. लैंड रिफॉर्म्स वर द मेन फोकस ऑफ देयर. First 5-year plan started in A 1947, B 1951, C 1967, 65, D 1970. फर्स्ट 5-year प्लान में लैंड रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया था, का टारगेट रखा गया था. तो वो कब स्टार्ट हुई थी, यानी फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुए थे? ऑप्शन बी इज राइट 1951. Question number 38. ICAR means option A Indian Council of Agriculture Research, B Indian Congress of Advice Research, C Indian Council of Advanced Research, D Indian Capacity of Agriculture Resource. So right option is 38 का A Indian Council of Agricultural Research. Question number 39. Which are the schemes introduced by the, this is G की जगह डी है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट फार्मर्स. ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड, बी पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑल ऑफ दीज. स्टूडेंट यहाँ पे PAIS पेस का की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम्स. तो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम फार्मर के लिए स्टार्ट की है? किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ऑल ऑफ दीज. सो राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दीज. ये तीनों स्कीमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए स्टार्ट की हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 40. मैच द फॉलोइंग. आपको वन साइड फ्रूट्स नेम है और सेकंड साइड आपको स्टेट्स के नेम दिए हैं, आपको मैच करना है. ऑप्शन ए मैंगो, बी ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज. सो मैंगो कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र में. ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, बी सी बनाना केरला एंड ऑरेंज नागपुर. तो आप यहाँ पे मैचिंग करके देखिए. मैंगो कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में. ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में, सी बनाना केरला में और ऑरेंज नागपुर में. तो BCKA, BCD, BCDA. तो राइट ऑप्शन इज A. BCDA is the right option. स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.